So we finished Darshan Moni a little bit, and now we are moving towards the Charitra Moni. Okay. So today we are going to discuss on Moksha Marg Prakashak, written by Pandit Odumilji. And last time we were on Darshan Mohammed Ki Avastha. Now today we are going to discuss on Charitra Moh. Wait a minute. So when Jeev indulges in the passion due to the rise of Charitra Moh, or then even knowingly or seeingly involves himself in anger, etc., believing the other object beneficial and harmful. So the main content of Charitra Mohini is that basically due to Charitra Mohini there is a involvement or just a kashaya or passion of 4 kashayas: Krodh, Man, Maya, Lobh, and due to this he just believe this kind of things that other object can give me benefit or can be beneficial for me or harmful. So this is the main cause of their suffering or our suffering. Afterwards, Todumilji one by one is describing about anger, about pride, about Maya, about greed. So last time we discussed on Krodh. Kunjan ji padhiye, due to the rise of the anger passion, though we completed it. Due to the rise of anger passion, believing other objects to be harmful, the Jeev wishes evil of them. When some temple, etc., inanimate objects appear to be disagreeable, then he wants to damage them by way of breaking and destroying, etc. And when the foes, etc., animate objects appear to be bad, then he wishes evil of them by inflicting pain through killing, chaining, or beating, etc. And if he himself or other living and non-living objects get modified in some form which he does not like, then he wishes ill of that modification by turning it into other form. Thus, there is a desire of willing ill of others is caused due to anger, passion, but its harm depends on destiny. Okay. So thus the desire of wishing ill of others is caused due to anger passion, but its harm depends on destiny. So harm depends on destiny. It means if someone who is standing before us to whom we are just angering, so it is not upon you that you can harm him, but it is on the destiny of the other person. In Hindi, Pandit ji ने ऐसा बताया था last time we discussed the sentence. किसी का परिणमन बुरा करना चाहे तो उससे क्या होता है? क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा से क्या हो? बुरा होना भवितव्य के अधीन है. In English, the desire of wishing ill of others is caused due to anger passion, but its harm depends on destiny. भवितव्य के अधीन है, it means it depends on destiny. So whenever we think that due to my anger nature, people are just in a
in a condition or in a just a fearful manner, they are behaving with me, or they are scaring with me, and they are obedient because I am having nature of anger. So it is delusion. Even if you are willing to just complete your work by others, by your nature of your anger, it is not also true, because the thing which is beneficial or harmful, is not depend on others, but it depends on your destiny. It depends on the destiny of others. So one clear concept which Pandit Odumalji is just handing over to us is that due to anger, etc., Kasai, you cannot do anything. It is only your delusion that beneficial or harmful, the concept of beneficial or harmful, it is your delusion. There's no any reality in this regard. So we just completed in last session about anger passion. Now we are going to discuss on man, it means pride passion. Pritesh ji, आप पढ़ पाएंगे? Is it comfortable to? जी सौरभ जी. Where should I start And from? on rise of the pride passion. Oh. And on rise of pride, passion, believing other object to be harmful, he desires to undermine it and desires to extol himself. Due to the feeling of dislike and disrespect in excreta, dust, etc., inanimate objects, he desires these to remain inferior and self to remain superior. And by bending and keeping under his control, he wishes other people, etc., animate substances, to remain inferior and self to remain superior. And for establishing one's own superiority in the world by decorating the body and spending money and other such acts, he desires others to remain inferior and himself to become superior. And if someone performs more commendable act in comparison to his own act, then he tries to prove it inferior through some means and wants to show his inferior act as superior. Thus, owing to pride, please carry. Thus, owing to pride passion, the desire to establish one's own superiority arises, but achieving superiority depends on destiny. And ये बस ये डिसीट पैसन अलग हो जाएगा. हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी मान की. मान कषाय बहुत इंटरेस्टिंग कषाय है, बहुत इंटरेस्टिंग. क्योंकि इसका इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मनुष्य गति. इसका संबंध सीधा मनुष्य गति से है. हम लास्ट टाइम यही स्टार्ट करना था. मैं लास्ट टाइम हमने यही छोड़ा था अपना टॉपिक. मान हमारी खुराक है. यू नो, मनुष्य गति में what we are eating, of course, that is the source of our life, but there is a one food which is just giving life to our mental subject, which is man. So man is a mandatory requirement for humans. Without man, he just feels himself as a inferior, or there may be strongly chances to get in the just trap of depression, etc. This kind of thing. टोडमल जी यहाँ बहुत साधारण सी बात बोल रहे हैं कि and the rise of pride passion, believing others object to be harmful, he desires to undermine it and desire to extol himself. Due to the feeling of dislike and disrespect in the extra dust, etc., inanimate object, he desires these to remain inferior and self to remain superior. This is the main thing over here. He desires to be himself as a superior, another must be inferior. ये मान का main nature है, उसकी body है ये, कि दूसरे मेरे से नीचे रहे. हम इसका थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं कि you know, we are earning money. So what is the purpose to earn money? Only one purpose is to support a life and family, and we can deal in easy way our just daily need.
for medical emergency and can support our family, our parents, wife, children, etc. It is only the basic concept. So if we talk about our community, Jain community, or those person who are just having a very simple life, they are not alcoholic, not just spending money, they're not extravagant. It means they are earning, or that earning is sufficient to fulfill his requirement. But why people are just going behind money in blind manner, they do not have time to go temple, to study, to think about himself. They are just saying that I have to earn lots of money, even whatever the price I will have to pay, I'm ready. So the most precious price what they're paying is time. If you are saving your only 1 hour day, and you are spending the time in your swadhyaya or in this kind of activities, going temple, discussing about the, so that may be called, okay, you are just utilizing your time, daily routine time in a good way or good manner. Even if that is a very little amount of time, but it will be appreciated at all. But there are many persons to whom I know, to whom you know. I don't know about the culture of your country or other country, but I just can say that the culture of India, there are many aspirant youngsters, even not youngster, but a middle age, but the aged. They're continuously running to accumulate more and more wealth. So wealth, wealth not in terms of money only. Wealth, types of wealth may be different. Like wealth of just man, it is also kind of wealth. In terms of money, in terms of property, in terms of stocks, anything we can count here in terms of wealth. So they are in hurry. They do not have even a single time. They're spending their each moment of their life only in accumulating wealth. So wealth in form of man, when a person just accumulated a sufficient amount of money, so he just tries to get another wealth, which is man. मान जो है ना, ये मान खतरनाक बीमारी है. सारी लड़ाइयां मान की होती हैं, ये हम सब पता है. The subject to be harmful. He desired to undermine and desire to extol himself. यानी जब मान का उदय होता है तो पर पदार्थ में अनिष्टपना मान के उनको नीचा दिखाना चाहता है. ये नीचे रहे. देखिए, ये लास्ट टाइम मैंने आपको ये केस स्टडी बताई थी कि जो एप्पल मोबाइल का जो जन्म हुआ ना, इस जन्म की बड़ी फेमस स्टोरी आप नेट पे भी देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि साहब, हमने जो मोबाइल हम बना रहे हैं ना, ये केवल बस बड़े लोग खरीद पाएंगे, पैसे वाले. आप खुद ही खरीद पाएंगे, मतलब जो पैसे वाले हैं वो ही खरीद पाएंगे. वो इस ह्यूमन नेचर को जानते थे. जो एप्पल के फाउंडर थे, मार्केटिंग वाले थे, जानते थे वो. उन्होंने कोई ऐसे फीचर्स एप्पल में कोई खास नहीं डाले. और फिर भी उन्होंने कहा कि इफ यू आर कैपेबल टू बाय दिस मोबाइल, if you are ready to pay $1,000, $2,000, then you can buy. Otherwise, you can buy Android. तो अब ये तो लोगों के मन में लग गई ना, हिट हो गई कि यार ये तो इज्जत पे बात आ गई. अभी इंडिया में ऐसा कल्चर आ गया, हर पहला दूसरा आदमी एप्पल के मोबाइल ले रहा है. वो चलाना ना जानता हो, उसको कोई यूज ना हो, लेकिन फिर भी एक स्टेटस सिंबल बन गया. ही इज हैविंग एप्पल मोबाइल, इट मींस अ गुड स्टेटस पर्सन. मान उसमें मान है एक्चुअली में. If anyone is not good looking, and many times he tries to just buy expensive dresses. Here in India, I'm not talking about there, but here in India, there are many
many showrooms which are known only for the expensive dresses, especially woman wearing, not but India. यहाँ साड़ियों की दुकान खरीदी हो, वो वहां जाए तो आपका जो प्राइस चालू होता है वो चालू होता है $100 से। आप $100 से चालू, फिर आप अगर है कि $50 $100 से चालू होगा, और हैसियत है तो खरीद रहे लोग, बहुत की दुकान, प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो मैं इसमें बोलता हूँ सबको कि अगर अच्छे नहीं लगते तो थोड़े पैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन जहाँ जाते हैं वो भी पैसे वाले लोग हैं, तारीफ, उनको वहां बढ़ जाए तो उनको लगता है चलो यार 1 लाख के कपड़े खरीदे कल, वो 2 शब्द अगर किसी ने बोल दिए कि भले ही पीठ पीछे कोई ऐसा बोले कि बोलना पड़ता है, पैसे पैसे वाले हैं बोल नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी उसे अच्छे अपने में अच्छा फील होता है कि आई एम सुपीरियर। So what we are talking about this, that Pandit ji is saying that due to the pride person, he considers himself as a superior. दूसरे नीचे रहे मुझसे, स्वयं ऊंचा, मैं बड़ा आदमी, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी प्रशंसा करें। इट इज द मेन मोटो ऑफ दैट पर्सन। वो अपनी प्रशंसा कराना चाहता है। ये एक बीमारी है, कई कई लोगों को आपने देखा होगा, मैंने भी कई लोगों को देखा है कि उनको प्रॉपर पहले मान मिलता था। स्पेशली जो 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 बॉलीवुड के कलाकार हैं, आप उनकी कुछ स्टोरी देखेंगे तो there was a time when they were very famous and they were earning lots of money and a huge fan following was that time. But now they are living isolated life, no follower, no money, so they are in depression. Many artists they have just committed suicide due to this मान। भाई हमने इतना मान देख लिया, इतना हमने सम्मान देख लिया, now there is no life without मान। They consider themselves, oh, now I'm inferior, I have no movie, I have no fan following, no words of praise, no clapping. Oh, without this, the instrument of man, my life is waste. So what should I do? I must commit suicide. So man is it's a kind of disease, it's a kind of mental मनोविकार जिसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पंडित जी ने कहा कि जब मान का उदय होता है तब ये पर पदार्थ में अनिष्टपना मान के उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा रहना चाहता है। केवल पदार्थों में नहीं, अचेतन पदार्थों का भी निरादर करता है ये। जैसे मैंने अभी एप्पल की बात की ना हमने, मैं बोलता हूँ एप्पल तो अचेतन है ना, अभी एप्पल का मोबाइल अचेतन पदार्थ है ना, उसके लेने से आप बड़े कैसे हो जाएंगे आप? नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने अगर ये खरीद लिया, if I am having this property, this element, if I am having that, it means I am superior than others. So there are many people, they are trying to do the work in different way. Different way, it means people will recognize me, they will pay their attention on me. पूरा मान का ही तो कारण है ना। स्वरूप जी, एक प्रश्न है मुझे यहाँ पे, बताइए प्लीज। कि जैसे हम सब लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम जैसे बच्चों को भी हम कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि अपने बच्चे भी आगे बढ़े, सब आगे बढ़े, सब प्रकार से आगे बढ़े, राइट, अपने करियर में, स्पिरिचुअलिटी में, अपने सोशल लाइफ में, जो भी सब तरीके से अच्छी तरह आगे बढ़े। अब हम इसमें कभी कभी क्या करते हैं कि हम उनको लोगों के एग्जांपल्स भी देते हैं, या फिर उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उन्होंने कुछ अच्छा किया तो दिखाते हैं, देखो इन्होंने ये किया है, आप भी ऐसा कर सकते हो, या
तो इसमें दो प्रकार की टेंडेंसी हो सकती है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है इसमें, हम किसी का एग्जाम्पल देके ये दिखाना चाहते हैं कि आपको भी ऐसा ऐसा करना चाहिए या आगे आना चाहिए, राइट। तो हम एग्जाम्पल तो लेते हैं दूसरे का कि क्या दूसरों ने बेंचमार्क सेट किया है, फिर हम बेसिकली हम खुद या फिर अपने बच्चों को ये कहते हैं कि नहीं, हम भी ऐसा करना चाहेंगे तो हम भी आगे बढ़े। और कभी कभी वो हेल्दी कंपटीशन कहलाती है ना, कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते वहां पे, मगर हम भी अच्छा करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आगे बढ़ने का भाव तो है वहां पे। तो वो एक प्रकार हो गया। और दूसरा प्रकार ये ऐसा होता है कि कभी कभी जब ईर्ष्या होती है, तो ईर्ष्या में ये होता है कि नहीं, हम किसी किसी का बुरा करके या फिर उनका नीचा होके हम आगे आ जाए, तो वो तो ईर्ष्या तो समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या अच्छी बात नहीं है और वो ज्यादा नेगेटिव है। बट हम लाइफ में है तो आगे बढ़ने का भाव तो सबको है। तो और हमारे बच्चों को भी हम सिखाएंगे तो हम ये इतना तो भाव हमको ये रहेगा ही ना, क्योंकि हम एकदम से अभी मुनि तो बन नहीं गए कि सारे हमारे एम्बिशन ही नहीं हो। तो एम्बिशन हो तो ऐसा भाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन था। देखिए, हाँ, बढ़िया प्रेरित जी ने एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से सबके मन में ये वाली बात होगी कि हमारा तो ग्रोथ माइंडसेट है ना, हमने बच्चों को भी ये सिखाया है भाई, बचपन से ट्रेनिंग हमें भी यही दी गई, आपको भी मुझे भी, कि इन योर लाइफ यू विल हैव टू जस्ट अचीव बिग गोल्स। तो बोले हमने बहुत मेहनत की, पीएमटी में, पीईटी में, कॉलेज में, स्कूल में, यहाँ तक पहुंचे हम लोग। हमारी रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है ना, तो रिसर्च में कैसे सिखाते हैं कि एक प्रॉब्लम आप पकड़ो, कि कोई कोई प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को पहले तो उसका स्टेटमेंट बनाओ, पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट की, तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद उसका एक स्टेटमेंट बनाया कि भाई ये प्रॉब्लम है। फिर प्रॉब्लम के बाद उसको वैलिडेट किया। तो वैलिडेट कैसे करते हैं कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल इकट्ठे करते हैं, उसमें डेटा, उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते हैं। तो डेटा कलेक्ट किया हमने। अब वो डेटा कुछ हमारे फेवर में हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि हमने तो प्रॉब्लम जो निकाली है उसको हमें सॉल्व करना है, तो वो डेटा हमने एनालाइज किया। डेटा एनालाइज करने के बाद उसको वैलिडेट किया, और वैलिडेट करने के बाद हमने उसको कंक्लूजन निकाला। अब माता पिता इस चीज को ऐसे ही लें कि भाई हमारे बच्चे की हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, इसका नेचर क्या है, हमें क्या सिखाना है। तो अभी हम देखिए जो भी बोलते हैं सब लोग, मतलब मैं भी पिता हूँ, आप लोग भी सब माता पिता हैं, तो हम लोग जो भी सब बातें बोलते हैं ना, वो सारी बातें यूँ समझो कि एक सब लोग वैसा कर रहे हैं। भाई इंडिया में तो बड़ा कंपटीशन है, खूब कंपटीशन है। यहाँ तो 3% कमाए, 4% कमाए तो भी घर में हल्ला हो जाता है कि यार क्या हो रहा है भाई, तुम्हारे 90% आए, उसके 93%। तो बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देना, ये तो नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए, लेकिन इसमें इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च इंडिविजुअली, मैं नहीं बोल रहा हूँ कॉमनली। सबकी एक व्यक्तिगत रिसर्च होना चाहिए। प्रॉब्लम फाइंड आउट करें कि भाई प्रॉब्लम क्या है, भाई बच्चे को हमें कितना, क्या है, एम्बिशन देना, अच्छी देना, गुड देना, बैड देना, उनको हम सब चीजें बताएं, उनको हर चीज समझाएं उनको। क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हम बच्चों के दिमाग में धीरे धीरे करके कंपटीशन का ऐसा भाव डाल देते हैं, आगे बढ़ने का ऐसा भाव डाल देते हैं कि वो पूरे जीवन काल दौड़ते ही रहते हैं। तो ग्रोथ की बात आती है अगर, तो ग्रोथ कोई लौकिक ग्रोथ, मैं केवल लौकिक ग्रोथ कोई ग्रोथ नहीं बोल सकते ना। इफ यू आर अर्निंग मनी, इट डजंट मीन दैट यू आर ग्रोथफुल पर्सन। So we must also provide that kind of data which will be useful for lifetime, for their permanent peace and places, कि इसमें भी बेटे आपको आगे बढ़ना है। कंपटीशन उसमें भी करा सकते हैं, देखो उनका बच्चा देखो कितना पढ़ता है, वो स्वाध्याय करता है, समझदार है, तो आगे जाके उसको खुद ही सारी चीजें कंट्रोल करना आएंगे। लेकिन व्हाट यू नो कॉमनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट, उन्होंने कोई रिसर्च तो की नहीं, प्रॉब्लम फाइंड आउट की नहीं, स्टेटमेंट वैलिडेट किया नहीं, कंक्लूजन निकाला नहीं, ब्लाइंडली ब्लाइंडली सब दौड़ लगाए जा रहे हैं। और उस चक्कर में क्या हो रहा है, कोटा, अभी आपने अखबार पढ़ते होंगे, पता नहीं इंडिया का अखबार पढ़ते हैं कि नहीं, कोटा हैज बीन अ न्यू डेस्टिनेशन ऑफ द सुसाइड, यू नो, देयर आर मैनी स्टूडेंट। मतलब हर 2-3 दिन में एक बच्चा मर जाता है, पता है आपको। अब आप सोचो, जो माता पिता हार्ड अर्न मनी दे आर सेंडिंग देयर चाइल्ड टू स्टडी, वो बेचारे आगे बढ़ने के पीछे उनको ऐसा प्रेशर दिया जाता है, ऐसा दिया जाता है, या समझ लो बचपन से फीडिंग ऐसी की गई
कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आईआईटी ये जी क्लियर नहीं कर पाया तो मैं क्या होगा मेरा, माय लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड, पेन सहन नहीं कर पाते हैं, दे जस्ट commit suicide. So it is now subject of a matter of discussion to government, especially why these young students they are just deciding to commit suicide. It is not good sign for our country. तो उन्होंने बनाया कि साहब स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं इनको आगे बढ़ने, आगे दौड़ लगाने का भाव इनको ऐसा नहीं देना कि ये बेचारे इतने डिप्रेशन में आ जाए, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। तो ग्रोथ माइंडसेट तो रहे प्रेरित जी, लेकिन दोनों तरफ से रहे, बैलेंसिंग रहे कि बेटे आपको अपने लाइफ में खुद स्वयं से करना है, और हम तो दुनिया में आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाले, बिकॉज आप जब बड़े होंगे, आप आ, बूढ़े होंगे, तब तक तो हम अपनी लाइफ की साइकिल पूरे कर चुके होंगे। तो बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट देना इट्स अ मैंडेटरी थिंग, इवन वी आर ट्रांसफरिंग आवर थॉट्स टू हिम और हर, एंड इट इज आवर ड्यूटी what we have collected from the experiences, study, and the observation in our life. So it is good sign that we are transferring all those properties to our next generation. It's a good thing. तो लेकिन सौरभ, लोग ये भूल जाते हैं कि वो उनको केवल एक ही डेटा नहीं देना, दूसरा भी देना है। हाँ प्रीति बोलिए। तो मैं समराइज कर लेता हूँ जो आपने बताया कि एक तो ग्रोथ माइंडसेट होना अच्छी बात है, वो तो हमें ठीक है, वो हमें लाइफ में जीना है, आगे बढ़ना है, तो वो होता है, उसकी उसमें बुरा नहीं है। मगर ग्रोथ माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सोली लोगों की कंपैरिजन पे बेस्ड हो, आधारित हो कि अब ये लोग ये कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये करना है। उसका हमें प्रॉपर वैलिड रीजन, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे लिए क्लियर होना चाहिए कि हम ये क्यों करना चाहिए, हमारा मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए, ना कि ओनली बिकॉज सब लोग ये कर रहे हैं। एक तो ये बात है जो आपने बताई। दूसरी बात की जो ग्रोथ माइंडसेट है, तो वो एम्बिशन इतना इंटेंस नहीं होना चाहिए कि बस फिर पूरी जिंदगी अपने बच्चे, हम लोग और हम सब भी भागते ही रहे, और कभी भी हम और प्रायोरिटीज को बैलेंस नहीं कर पाए लाइफ में, और एक ही एम्बिशन के पीछे भागते रहे और एम्बिशन सेक्रीफाइस हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि नेगेटिविटी के साथ नहीं होना चाहिए, यानी किसी को हीन दिखाने की भावना या फिर किसी का बुरा करने की भावना के साथ वो नहीं होना चाहिए। एकदम सही, पूरा कंक्लूजन आपने भी जो डिस्कशन किया उसका बता दिया। बहुत बढ़िया। क्या होता है, हम लोग पेरेंट हैं तो ऐसा हम लोग बात कर सकते हैं कि हमें अपने बच्चों को पता है ऐसा, हमें बच्चों को मैथ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमें बच्चों को ना फिलॉसफी सिखाने की आवश्यकता है। लाइफ में 20% मैथ की आवश्यकता होती है, 80% तो फिलॉसफी की आवश्यकता होती है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। हमारी लाइफ जो है ना वो मैथमेटिकल ड्रिवन नहीं है, हमारी लाइफ ना फिलोसफिकल ड्रिवन। सो इफ यू हैव जस्ट लर्न अ गुड फिलोसफी ऑफ योर लाइफ, एंड इफ यू डिस्कवर्ड good point, or if you have just known a philosophy of growth mindset or adhyatma mindset, so it is your duty to transfer all these things to your next generation. बच्चों को मैथ ट्रांसफर ना करें, हम ट्रांसफर करें हमेशा दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। मतलब मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दर्शन शास्त्र, दैट्स व्हाई आई एम नॉट जस्ट इंसिस्टिंग यू टू इंडल्ज इन दैट। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने जो ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, या मेरी जो भी रिसर्च चल रही है उसमें, तो मैंने ये देखा कि 80% हमारी लाइफ फिलोसफिकल कंसेप्ट से चलती है। मतलब हमारी लाइफ नहीं, पूरा वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड। मैं भी आपको भारत के बारे में बताऊं, भारत जो है, मतलब आप लोग वहां बैठे हैं, आपको ग्रोथ नहीं दिख रही होगी, लेकिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते भारत किस किस तेजी से ग्रो कर रहा है। लोगों को लग सकता है कि ये तो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, कि इतना जीडीपी की ग्रोथ है, ये है वो है, नहीं। भारत का बढ़ना मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं है, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी कैसी, देयर इज अ वन पर्सन, और देयर इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ सम पर्सन, दे आर पैट्रियोटिक, और उन्होंने कहा साहब हम तो देश के हित में जो होगा वो करेंगे, और दे आर जस्ट डूइंग वर्क सिंस लास्ट 40-50 years, which is called आरएसएस संघ। और वो कह रहे हैं साहब हम तो मातृभाषा को बढ़ावा देंगे, स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, सब चीजें अपने यहाँ उत्पन्न करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। इट्स अ फिलोसफी, मैथ नहीं है, फिलोसफी। आप सोचिए उस फिलोसफी के बेसिस पे इंडिया जो ग्रो कर रहा है ना, आउट ऑफ इमेजिनेशन, यू कैन नॉट इमेजिन। अभी और जो प्रोजेक्ट उन्होंने प्रपोज किए हैं, हमारी क्योंकि मीटिंग्स होती हैं तो हम लोगों को इंटरनली पता होता है कि
what they are just planning to execute in coming 5 years, in coming 10 years. पूरा वर्ल्ड हतप्रभ हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और आगे जाके तो किसी के मतलब भारत के आसपास पहुंचने की किसी की हिम्मत ही नहीं रहेगी। तो ये फिलोसफिकल कंसेप्ट से हुआ कि एक व्यक्ति कह रहा है कि साहब मैं मरूं उससे पहले मैं देश हित में काम करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति नहीं, उनकी पूरी सोसाइटी, उनकी पूरी संस्था इस बात में है कि, तो ये फिलॉसफी के कारण आप सोचो कितना बड़ा बदलाव आया। आज सौरभ जी, एक क्वेश्चन था। बोलिए प्लीज। जी सौरभ जी, अभी जैसे प्रेरित ने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, फिर आपने कहा कि फिलोसफी पे बढ़ाना चाहिए। अभी अगर आप देखा, हम जब जैनिज्म की बात करते हैं तो हम द्रव्यान योग पे फोकस करते हैं, मतलब हम सारी चीजें बातें करते हैं, बट एवरी डे टू डे लाइफ में जो उनको गाइडेंस देना चाहिए वो जनरली स्टोरीज से उनको ज्यादा मिलता है कि मुझे इस सिचुएशन में इस तरह से एक्ट करना है। जैसे बुद्धा की काफी स्टोरीज आते रहते हैं, या तो जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स है। तो हमें जैन धर्म में ऐसे कौन से प्रथमा योग के ग्रंथ है जो हमें डे टू डे मोटिवेशन दिलाता है सही चीज करने का, फिलोसफी जो बच्चों को आप पढ़ा सकते हो कि भाई एक दो पेज आपने डेली बच्चों के साथ पढ़े और उनको गाइडेंस दिया फिलोसफी के बारे में। अगर अ, ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसे कोई ग्रंथ एक से ज्यादा जैनिज्म में है जो स्पेसिफिकली हमने पढ़ने चाहिए, जो डे टू डे आपको गाइड करते हैं हर चीज में? हाँ देखिए, एक तो जैन धर्म की कहानियों की एक सीरीज निकली पूरी, तो कहानियां किसी ने ऐसे लिखी नहीं है, वो कहानियों का छोटा छोटा फॉर्मेट जो है ना, वो अपने प्रथमानी युग के ग्रंथों से निकाल कर बनाया गया है। एक तो वो है तरीका। दूसरा, अपने कुछ ही चैनल्स हैं जिनने इस प्रकार की स्टोरीज बनाई हैं। एक तो अपना केवल ज्ञान है, तो तीर्थंकर बनाई है, और एक वो प्रीतेश कोठारी है वहाँ के पंढरपुर के, उनने बनाई है। एक प्रामाणिक समूह है। ये 2-3 चैनल हैं, काफी अच्छा कंटेंट है, काफी सारी चीजें बनाई भी इनने। तो उसमें इंफॉर्मेटिव रहता है, वो डे टू डे लाइफ में सिखाने को भी मिलता है वो। तो वो अपन दिखा सकते हैं उनको। फिर कुछ हम भी बता सकते हैं उनको, खुद बता सकते हैं कि बेटे ये तुमने सीखा, इसमें क्या पढ़ा। क्या होता है, ये कोई पूरा जीवन है, हमें उनको नहीं बताना है, पता है आपको। ये तो एक, जब तक वो थोड़े से मैच्योर नहीं होते ना, तब तक हमें उनके ब्रेन में ये समझ लीजिए सीडिंग करना है। एक बार सीडिंग आपने कर दी, फिर उसके बाद तो लाइफ में आगे उनको ऑटोमेटिकली ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। एक कुरल काव्य लिखा है प्रेरित जी ने, तो कुरल काव्य थोड़ा सा वो कठिन हो जाएगा बच्चों के लिए। नीति वाक्यामृत है, बढ़िया है वो तो, लेकिन ये हमारे लिए है। नीति वाक्यामृत जो है, उसमें थोड़ी सा फिलोसफिकल कंसेप्ट ऊपर की दी है। और कुरल काव्य भी हमारे लिए है, मतलब मैच्योर लोगों के लिए तो कुछ कंटेंट होना चाहिए ना, तो हिस्टोरिकल। हाँ, लेकिन ये है कि आप लोग ये पढ़ के, कुरल काव्य पढ़ के, नीति वाक्यामृत पढ़ के आप लोग खुद सीख सकते हैं, उसके बाद आप बच्चों को बता सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको रिसर्च का पैटर्न बताया ना, कि भाई आपने बच्चों को एक स्टेटमेंट बताया कि देखो बेटे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो आपके स्टेटमेंट को वैलिडेट कराएंगे, बोलेंगे आप वैलिडेट कीजिए, आप ये बोल रहे हो। तो आप उस समय उनको ना ये प्रमाण दे सकते, देखो बेटे कुरल काव्य में, नीति वाक्यामृत में ऐसा लिखा हुआ है, और ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े आचार्य थे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, on the basis of fact, and on the basis of your past research, he has written each and everything। तो हमें ऐसा फॉलो करना चाहिए। तो आपने क्या किया, स्टेटमेंट दिया उनको ग्रंथ से निकाल के, उसको वैलिडेट किया आपने, फिर कंक्लूजन उनको बता दिया। तो उनके दिमाग में क्या होगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने लाइफ की फिलोसफी उनको कब क्लियर करके और उनको उस लेवल पे पहुंचा दिया। देखिए मैं एक अपना खुद के एग्जांपल बताता हूँ, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो तो बहुत जनरल सी घटना है कि जैसे अब भी क्या है, अब बिजनेस के सिलसिले में कहीं ना कहीं बाहर जाना होता रहता है। तो बाहर जाना हमारा कोई ऐसा फैक्ट्री विजिट नहीं होती हमारी स्पेशली, हमें कोई बहुत रिमोट एरिया में जाना, जाते हैं मेट्रोज में जाते हैं, बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, बड़ी सिटीज में जाते हैं। तो अच्छा, मिलना भी फिर बड़े लोगों से ही होता है, जो बड़ी वेल्थ मैनेज कर रहे हैं, या फिर बड़े लोग हैं, क्लाइंट है, सबसे मिलना होता है। खाना भी ऑफ कोर्स रखती हैं वो, तो वो तो क्लियर है कि अगर वो नॉन वेज भी साथ में रखते हैं तो वो तो खैर वहां उसमें जाने का सवाल ही नहीं, वो तो केवल वेज रखते हैं, तो मैं तो उनके साथ बैठता भी नहीं। अभी जैसे रिसेंटली परसों ही आया मैं बॉम्बे से, 2 दिन का हमारा कॉन्फ्रेंस था, तो आदित्य बिरला का कॉन्फ्रेंस था, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था वो। तो मैं तो अपनी, जो बताते हैं, मैं पुड़ी ले गया था अपनी, अचार ले गया था, पुड़ी ले गया था। ऐसे अगर किसी को बोलेंगे तो 2 दिन अपने घर के नाश्ते पे निकालना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है उसके लिए। और वहाँ आए, 7 स्टार में रुकाया, सहारा बॉम्बे की फेमस होटल है, वहां रुकाया, सबको एकदम रॉयल ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो लोग।
और सब बहुत बढ़िया रह रहा है। लेकिन मैं अपनी फिलॉसफी में, कंसेप्ट में क्लियर था। तो जहाँ उस होटल में सब लोग अपना खाना खा रहे थे, मैं अपना थैला लेके बाहर आया। मैंने देखा यहाँ कोई प्रॉपर स्थान नहीं मिल रहा है। बाहर आया जहाँ फाउंटेन चल रहा था, मैं बैठा, तो बस मैं बैठा, अपना खाया, अपना निकाला, अपना खा के चला गया अंदर। अब इसमें कोई मेरे साथ नहीं था, कोई दबाव भी नहीं है उसमें। ये तो फिलोसफिकल कंसेप्ट है। मतलब वो यूं समझो कि पढ़ के समझ के फिलोसफी क्लियर हो गई कि नहीं भाई, इसके बिना काम चलेगा। क्योंकि अ, भाई गृहस्थ अवस्था है, व्यापार कर रहे हैं, तो भाई मीटिंग में जाना लगता है, भाई अभी जाना चाहिए हमें। और उसमें कोई ऐसी और दूसरी कोई एक्टिविटी होती नहीं है, केवल वैल्यू, नॉलेज का वैल्यू एडिशन होता है। तो ये फिलोसफी है कि भाई फिलोसफी ऐसे अपन लोग बच्चों को भी, जैसे अब इससे हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं इन चीजों से, कि भाई पापा जाते हैं कॉन्फ्रेंस में तो उनका एक अलग से खाने का थैला जाता है साथ में। तो जब वो आगे अभी बड़े होंगे, 2 4 5 8 साल बाद वो जाएंगे, तो उनका भी एक थैला तैयार होगा, उनको फिलोसफी क्लियर हो रही है। तो वो भी ऑफ कोर्स कॉन्फ्रेंस में जाएंगे वो तो उनको जब ये फिलोसफी अगर क्लियर ना हुई, तो आपको पता होगा कि हमारे बच्चे ना सबसे ज्यादा हमसे सीखते हैं। तो जो अभी प्रीतेश जी ने पूछा कि वो स्टोरीज कौन सी सुनाए, तो आपकी लाइफ एक सबसे बड़ी स्टोरी है बच्चों के लिए। जब तक वो आप पे डिपेंडेंट है ना, तब तक वो आपको अपना आदर्श मानते हैं। तब तक वो ऐसा मानते हैं कि व्हाट माय मदर एंड फादर दे आर डूइंग, एंड आई विल फॉलो दैट थिंग, एंड इन फ्यूचर दैट विल बी परमानेंट स्टेटमेंट और द फॉलोइंग पॉइंट इन देयर लाइफ। तो ऐसा किया जा सकता है, और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं जिस जिस क्लास में लेता हूँ, तो उसमें बच्चों की जब बात आती है तो हम सब लोग सेंसिटिव होते ही हैं, इवन मी, इवन इवन यू। तो ये मैंने पॉइंट जो निकाला है कि भाई बच्चों को सिखाना है तो आप खुद फॉलो करो, बच्चों को धीरे धीरे करके सिखाते जाएं, बताते जाएं, स्टोरी दिखाएं, शास्त्र पढ़ें, नीति वाक्यामृत बताना है वो बताएं। जो जैन धर्म की कहानियों के 12 या 15 वॉल्यूम हैं वो हैं, फिर जो वीडियोस जो बताई मैंने आपको वो बताएं। तो ये अभी तो सफिशिएंट कंटेंट है ये तो, और इससे मेरे ख्याल से फायदा होता भी है। सर अभी मेरा एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, मैं जो शेयर करना चाहूंगा सबके साथ, कि जैसे हम ज्यादातर जैन धर्म की कहानियां या ये लेते हैं ना, तो हाँ, स्पिरिचुअलिटी का, फिर पाप पाप नहीं करने का, पुण्य कार्यों में लगने का, ये सब तो अच्छी बात है, वो सब तो है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का, मुनि राजों की सेवा करने का, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान की आराधना करने का, ये सब है। और वो जरूरी है ही, वो तो ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हमें बच्चों को सिखाना ही चाहिए। अब वो तो हम सिखाते हैं, पर क्या होता है कि जब बच्चे सिर्फ वही टाइप का कंटेंट देखते हैं, अगर वही देखते हैं, तो क्या वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी फोकस्ड बन जाते हैं, यानी कि उनको जो नीति के अलग एंगल होते हैं कि अब लाइफ है, तो सब कुछ तो आइडियल होगा नहीं, सब कुछ तो स्मूथ चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तकलीफें तो आएगी, कुछ ना कुछ लोग भी ऐसे मिलेंगे, डिफिकल्ट पर्सनालिटी के लोग, जो आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, ये सब। तो मुझे, मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है, और मैं भी गलत भी हो सकता हूँ इसमें, आप मुझे सुधार भी कीजिए अगर मैं गलत हूँ तो, कि जो जैन कहानियां, जो भी कंटेंट है आज की तारीख में अपने पास उपलब्ध है, तो इसमें ये पाप से दूर रहने का, अच्छी अच्छा सीखने का, मोक्ष मार्ग में लगने, ये सब तो हम सिखाते ही, ये तो है ही। पर जो अलग एंगल है नीति का, जिसमें डिफिकल्ट लोगों से कैसे डील किया जाए, अगर आपको परेशान कोई कर रहा है, परेशानियों से कैसे लड़ा जाए, लाइफ में चैलेंज कैसे, चैलेंजेस, मुश्किलों में से कैसे बाहर निकले, तो ये सारे रिलेटेड नीति मुझे इतनी बच्चों के लिए सूटेबल अपने अभी तक तो अपने आज के जैन ग्रंथों में से मिली नहीं है मुझे। तो इसलिए मैंने चाणक्य नीति जो है उसका मैं देखा, तो उसमें छोटे छोटे वाक्य है। अब वो जो वाक्य चाणक्य नीति वाले हैं, वो आप एडल्ट के लेवल पे भी समझा सकते हो, और बच्चों को लेवल पे भी समझाया जा सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि डर है, डर को कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ बना के इस्तेमाल करें, तो उसमें सांप का एग्जाम्पल लिया जाता है कि सांप वैसे तो डरपोक है, कि वो डरता है, सबसे दूर दूर रहता है, फिर भी लोग उससे डरते हैं, क्योंकि वो अपने डर का इस्तेमाल अपनी स्ट्रेंथ बना के करता है। वो सिर्फ अ, वो फैन करना जानता है, वो लोगों को करवाना जानता है, तो इस तरीके से वो रहता है कि लोग उससे डरते हैं। वो खुद डरता है, फिर भी वो डर को अपना हथियार बना के रखता है। तो कुछ चीजें ऐसी ऐसी है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि अपने जैन शास्त्रों में से अभी नहीं मिल पाती है, मगर काफी काफी वैल्यूएबल लेसन है। फिर दोस्तों का चयन कैसे करना,
दोस्तों का टेस्ट कैसे करना, दोस्त आप सच्चे दोस्त कैसे, कौन से आप, वो सब। तो मुझे, आप अगर ऐसे कोई ग्रंथ हो चाणक्य नीति जैसे अपने जैन ग्रंथ, तो आई वुड लव टू नो। हाँ देखिए, इसमें मैं बता देता हूँ। जैसे अ, आप चरणान योग जब पढ़ेंगे ना, तो चरणान योग में अगर आचार विचार की बात लिखी है, तो उसमें जैसे आप भगवती आराधना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सज्जनों की संगति क्यों करना चाहिए, तो सज्जनों का स्वरूप भी बताया, तो बताया ना ऑटोमेटिक कि हमारे आसपास कैसे लोग होना चाहिए। भोजन का बताया। फिर उसके बाद नीति की अगर आप बात करें तो छत्त चूड़ामणि पढ़ेंगे तो उसमें नीतियां आई हैं। नीति वाक्यामृत पढ़ेंगे तो उसमें नीतियां आई हैं। और हमारे जो पुराण है उनमें भी नीतियां कई जगह आई हैं। अब ये तो एक फैक्ट निकालने वाली बात भी है ना कि आप उन कहानियों से क्या निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि स्त्रियों के लिए सीखना हो, जैसे, या पुरुषों को सीखना हो। अभी हम स्त्रियों की बात करते हैं कि जो हनुमान की माता थी, अंजना थी ना, तो भाई आप सोचो कि उनके पाप के उदय से उनको, जो पवन थे उनपे बहुत क्रोधित थे वो तो, और वो उसके कारण से उनने कभी उनको स्नेह की नजर से देखा भी नहीं। 15 साल एक लंबा समय हो गया, शादी के बाद भी देखा ही नहीं स्नेह। अब भाई उस समय का समय था, और वो तो सती थी वो तो ऐसा आजकल तो हो जाता है, आजकल आपकी कंट्री हो चाहिए कंट्री। तो उसमें बताया कि भाई उनने कितना धैर्य पूर्वक काम लिया, उनने कितना धैर्य से काम लिया, कभी क्रोध नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी सामने वाला भी सज्जन है, उदय मेरा खराब है, तो वो उन्होंने तत्व का चिंतन किया ना। कपन पुरुष का भी लगा लेते, जो श्रीपाल थे, कोड़ी थे, तो भाई अब उनके चाचा ने राज्य छीन लिया, कोढ़ हो गया, तो उनने कितनी समता रखी, कितनी समझदारी का प्रयोग किया। आजकल तो क्या कहते हैं, ज्यादा बीमार हो गए तो इच्छा मृत्यु ले लो, भाई भाई मर जाओ। अब उनको तो कोढ़ मतलब तो दुनिया की सबसे भयानक बीमारी होती है, हो गई तो उनने तो समता रखी, उनने तो छिद्र चक्र मंडल विधान किया ना उनने। तो ये हमें ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिल रहा है। छत्र चूड़ामणि में आप नीति पढ़ेंगे तो नीतियों में भी पूरा ये बताया जा रहा है। आप चरणानुयोग देखेंगे तो उसमें भी तो सदाचार जीवन बताया जा रहा है। भगवती आराधना में देखेंगे तो उसमें सत्संगति के महत्व बताया जा रहा है। हाँ, अब एक अलग बात है कि इन सब किताबों का एक रिसर्च करके एक अलग से एक किताब बनाई जाए, तो वो एक बनेगी तो इनका जो जो भी कंटेंट लेंगे वो तो इन्हीं से लेंगे, तो वो एक अलग से बनाई जा। लेकिन हाँ, तो आपका सुझाव और आपके विचार हाँ, एकदम अच्छे हैं, उसमें कोई मैं ये कह रहा हूँ कि सदाचार रिलेटेड नीतियां बहुत है अपने यहाँ, बट सदाचार से हटके भी एक एंगल है नीतियों का, लोगों के साथ डीलिंग का, ऑर्गेनाइजेशंस में रहने का, वो जो लाइफ का एक एंगल है, वो इतना इजीली नहीं मिल पा रहा है। शायद प्रीतेश भी शायद वही कहने चाह रहा है। आई डोंट नो प्रीतेश, इफ दैट्स व्हाट यू मेंट। नहीं। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें ना हमें एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा तो क्या होता है, सबकी लाइफ जो होती है ना, अलग अलग प्रकार के लोगों से घिरी होती है। जैसे मैं, आप जैसा बोल रहे हैं ना, मेरा को ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मैं बोलता हूँ कि साहब, जब मेरी ना तो संगति गुंडों की है, बदमाशों की है, चोरों की है, मैं उनसे निपटना सीखना ही नहीं मुझे। अच्छा, जितना मैं अपने आप में जानता हूँ, तो उतना तो मैं चोरों से निपटना ही नहीं, तो मैं क्यों तलवार चलाना सीखूंगा? क्यों मैं भाई बोलूंगा कि तुम गाली दोगे तो मैं भी दूंगा? मुझे क्यों फाइटिंग के लिए मुझे कोई जूडो कराटे सीखनी ही नहीं, कि कभी अगर मौका पड़ जाए तो अपन मारेंगे? भाई ऐसी संगति नहीं है, काम ही नहीं हो रही बात कि साहब, अगर कोई ऐसा आ गया तो, अब भाई हम रोज तो प्रैक्टिस करने वाले हैं नहीं, वो तो प्रोफेशनल ट्रेन रहेंगे। अब उदय होगा तो बचेंगे, नहीं होगा तो नहीं बचेंगे। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का एक डिफरेंट रहता है। मैं एक आपको छोटी सी केस स्टडी बताता हूँ फिर। एक यूएस की केस स्टडी है, 2012 में हुई थी। तो 2012 में एक केस स्टडी हुई कि मैरिल लिंच का जो सीईओ था उसने रिजाइन दिया 2006-7 में। तो वो उस समय अखबार में बहुत सुर्खियां बटोरी उसने कि 40 इयर्स में रिटायर्ड हो गया और इतने पैसे कमा लिए इसने। और खूब साहब उसने बड़ा विला ले लिया। उस विला में 7 स्विमिंग पूल, 7 गार्डन्स, गाड़ियां और बहुत दुनिया भर की चीजें थी। लोन भी ले लिया उसने, कमाई बंद कर दी, लोन ले लिया। अब अपनी इंडियन सोच तो होती नहीं है कि भाई कमाई नहीं तो लोन का है का। 2012 में वो समझ लो बैंकक्रप्ट हुआ क्योंकि $90,000 तो उसको महीने का
वो मकान मेंटेन करने का खर्चा था, तो टिक तो सकता ही नहीं था इतनी खर्चे में। तो वो अब वो 2012 में जब कोर्ट में केस गया तो उसने कह दिया कि मेरे पास तो $1 भी चुकाने को नहीं है, आई हैव बीन कम्प्लीटली बैंकरप्ट। एक तो ये केस स्टडी है, ठीक है। दूसरी केस स्टडी उसी समय 2012 में एक और आदमी था जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता था, उसकी डेथ हुई। तो जब उसकी डेथ हुई तो उसकी जो संपत्ति का पता चला कि भाई इसके पास कितनी असेट, तो $19 मिलियन करके उसके पास संपत्ति थी। अब क्वेश्चन ये आया कि मैनी लिंच का द मोस्ट सफिस्टिकेटेड, द मोस्ट एडुकेटेड पर्सन जो सीईओ था, एंड ही अर्न लॉट्स ऑफ मनी, उसके बाद ये बैंकरप्ट हो गया। और वो जो था, जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता था, वो जब मर रहा है तो उसकी जो वेल्थ है वो 19-20 मिलियन डॉलर कैसे है, जबकि इसकी तो कमाई कुछ भी नहीं है। तो केस स्टडी में आया कि भाई ये जो था पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला, इसे कोई बहुत विशेष स्टैटिक्स मालूम नहीं था, इसको कुछ कुछ बहुत गणित नहीं आता था, बहुत रिसर्च का बंदा नहीं था। इसे तो ये पता था कि भाई मुझे जो भी सैलरी मिलती है वो बस केवल इन्वेस्ट करता गया, लाइफ टाइम उसने इन्वेस्ट किया, करता गया, और वो करता गया। तो वो उसे एक कंसेप्ट क्लियर था कि साहब मुझे बस इन्वेस्ट करना है मुझे। तो वो कंसेप्ट क्लियर होने से दो केस स्टडी बनी कि एक मैरी लिंच का सीईओ या बड़ा अधिकारी था जो भी, तो वो इतना समझदार होने के बाद भी एक सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया उसको, और वो बैंकरप्ट हो गया, और एक को सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर था। तो ऐसे ही बच्चों के लिए बात बताता हूँ मैं कि भाई हम उनको बता दें कि हम ऐसी संगति में ना आए। और सत्संगति की बात तो अपने जैन ग्रंथों में है ही। अच्छा, चाणक्य तो नीति अभी पढ़ाना गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत, बढ़िया है, वो सही है। मैंने भी पढ़ी है, हमने पढ़ी है, कोर्स में थी, हमने एग्जाम भी दिया। तो मैं तो आपको इस चीज का आंसर दे रहा हूँ कि जनागम में भी ये चीजें हैं, और बच्चों को अगर आपने बेसिक क्लियर करा दिया तो बहुत सारे डिसीजन वो खुद ही ले लेते हैं वैसे। इस और देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो क्यों ये एस्पेक्ट मिसिंग है। कि जैसे हम तो अपने बच्चों को बुरी संगति करना हम नहीं सिखाना चाहते, कि हम ऐसा कहेंगे भी नहीं कि आप करो। अब जैसे स्कूल में जाते हैं, अब ये कहीं पे भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है, यहीं पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है कि स्कूल में गए, अब उन्होंने स्कूल में भी बुरी संगति नहीं की है किसी के भी साथ, मान लो, बट कोई ऐसे बच्चे हैं क्लास में जो अपने बच्चों को परेशान कर रहे हैं, बुलिंग कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं कुछ ना कुछ कारण से। अब बच्चा बच्चा होता है, सबके फेजेस होते हैं, राइट। तो हम उनको चलो स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं, हम उनको सारी चीजें अपनी जो जनागम की है वो सिखाते हैं, तो सदाचारी तो रहेंगे। और ये हम अगर समय सार की बातें भी सिखाते हैं, अगर द्रव्यान योग भी सिखाते हैं, तो हम उनको ये भी सिखा देंगे कि जैसे उनकी बातों से इजीली प्रभावित नहीं हो। पर फिर भी क्या होता है कि ये फेज होता है, एकदम से बात ऐसा नहीं है कि उनके अंदर है ही थोड़ा बहुत तो बच्चा है, अगर तो उम्र के हिसाब से प्रभावित हो ही जाता है। वो क्या हो जाता है, यानी उनकी उनकी अगर उन्होंने किसी ने उसके लिए गलत बात कर दी, अगर क्लास में उसको चिढ़ा रहा है, कुछ बोल रहे हैं, तो परसिस्टेंट बेसिस पे अगर ये होता रहता है, तो उसके मोरल पे, उसके इमोशन पे, सब पे असर पड़ता है, पर्सनालिटी पे, सब पे। तो अब हमें समय सार तो सिखाना ही है कि हम कैसे उनकी बातों से इजीली प्रभावित नहीं हो, बट साथ साथ में हमें ये भी, मुझे ऐसा लगता है, ये भी सिखाना है कि उनके साथ कैसे डील किया जाए, उन बच्चों के साथ, कि उनको कैसे एक डिस्टेंस पे रखा जाए कि वो लोग परेशान करने की चेष्टा नहीं करें, और अगर परेशान करते हैं तो क्या उनके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, या क्या कर सकते हैं फिर आगे चल के। वो तो ठीक है, बट उनको कैसे पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म किया जाए अपने, क्योंकि अपने साथ वो रिलेशन अच्छा रखे। तो हम ये सारी जो एंगल्स है, ये सारे एंगल मुझे एटलीस्ट अभी जिनागम में इजीली नहीं पाए जाते, ये मैं कह रहा हाँ हाँ, इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे डिसीजन तो बच्चे ले लेते हैं। और रही बात कि अगर कोई स्कूल में परेशान करता है, कुछ भी करता है ना, तो ये आपकी ड्यूटी है, देखिए कि आप जिनागम से जो चीज पढ़ रहे हैं उसको एक इजी वे में प्रेजेंट करना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, भाई विरोधी हिंसा का आप स्वरूप सिखाओ, विरोधी हिंसा क्या होती है। तो जब आप उसको विरोधी हिंसा सिखाएंगे ना, तो उसको क्लियर रहेगा कि भाई हिंसा तो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बात हम पर आ जाए, हमारे प्राणों पे आ जाए, बहुत समस्या आ जाए, तो थोड़ा सा रिटेलिएट करना, वो चूंकि उसमें पाप लगता है, तथापि गृहस्थ है तो वो एक नेचुरल अवस्था है। तो उनको जब ये कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो वो कोई ना तो आपराधिक प्रवृत्ति के बनेंगे, और वो फिर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं।
तो ये एक क्या होता है लौकिक में, तो देखिए देयर आर मेनी मोटिवेशनल गुरु, और वो अलग अलग टाइप की चीज बता रहे हैं। तो मैं ये भी बताएं आप, उसमें जिनागम का आधार अवश्य होना चाहिए। हाँ नहीं मतलब मैं लाफिंग वही कह थेरेपी रहा से मैं, पूरा लाइफ परमानेंट पीस हो जाएगी ना, वो फिलोसफी तो हमें बतानी नहीं कि लाफिंग थेरेपी से यू कैन हैव परमानेंट पीस एंड मैं क्या कह रहा हूँ सौरभ जी कि वो बात, वो जो विरोधी हिंसा की बात बताई ना, तो विरोधी हिंसा के भी बहुत अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, राइट? कि एक प्रकार तो हो गया कि चलो फिजिकली ही अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए, अगर फिजिकल पे बात आ गई है तो। दूसरे ये भी हो सकते हैं कि आपको दूसरी तरह से उनको जवाब देकर, कोई और तरीके से जवाब देकर उनको उनको चुप किया जाए। तो विरोधी हिंसा की जो अलग अलग प्रकार है ना, वो ही सारी नीतियां है जो जो मैं कह रहा था कि चाणक्य ने बहुत बढ़िया लिखी है। कैसे अपने विरोधियों को के कंट्रोल में किया जाए, कैसे आप ऐसा माहौल भी क्रिएट करें कि लोग आपके विरोधी भी नहीं बने, लोग आपके पक्ष में ही रहे। कैसे उनसे उनसे डील किया जाए डे वन से, जब से आप जानते हो। कैसे लोगों की पहचान करें कि कौन कैसा है, और कौन कैसा है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये सारा बहुत डिटेल माइन्यूट दिया है वो, जो आई मीन काफी अनबिलीवेबल उन्होंने जो लेसन्स लिखे नहीं हैं। बढ़िया है, मैं बोलूँ ना अच्छी है वो, और नहीं पढ़ा है मैंने ये बोला ही नहीं, लेकिन हमेशा ना हमारा कोर जो कंसेप्ट जो रहे ना, वो हमारा जिनागम से ड्रिवन रहे, और उस चीज को, उस स्टेटमेंट को जो सपोर्ट करता हूँ ना, वो डेटा हम आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ, सही बात। वो अगर चाणक्य नीति में मिलता है और कहीं मिलता है, तो वो हम, हमारा बेस जो रहे ना, जिसे हम बोलते हैं खूंटी से बंधा हुआ, तो जिनागम की खूंटी में तो कोई बुराई नहीं है, भटकने का डर नहीं रहता है। लेकिन अगर हमने अपनी खूंटी छोड़ दी, खूंटी मतलब कि वो जो बांधने की होती है ना, वो खूंटी बोलते हैं उसको, तो वो छोड़ दी तो भटकने के चांसेस रहते हैं ना, वो तो बहुत सारे। हाँ ये बात सही है सौरभ जी, ये बात एकदम सही बताई आपने कि अगर जिनागम का बेस लेके नहीं चलेंगे तो ये सारी चीजों का मिसयूज भी फिर हो सकता है, और एक्सट्रीम भी हो सकता है इसमें फिर। तो देखें, हम माने या ना माने, लेकिन हम सब ये फील करते हैं कि हमारी आज जो पर्सनैलिटी है ना, तो ये पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमारे माता पिता से हमें ट्रांसफर हुई है। मतलब 70% तो हम मान सकते हैं कि माता पिता से हुई है, और 30% में सब आ जाते हैं। तो माता पिता में केवल माता पिता नहीं होते हैं, वो दादा दादी भी होते हैं, चाचा चाची भी होते हैं, जो हम सब साथ में रहते हैं, उनसे हमें ट्रांसफर हुई है। 30% में स्कूल दूसरे मान लो। ऐसे क्या होता है कि हमारे बच्चे सबसे ज्यादा हमारी फैमिली का डेटा ही अपने अंदर लेते हैं। दे आर कंटिन्यूस, दे आर टेकिंग डेटा, यू नो। आप लोग सब डेटा साइंटिस्ट हैं, हम जानते हैं कि वो लगातार डेटा ले रहे हैं। वो आपको पढ़ते भी देख रहे हैं, बोलते भी देख रहे हैं, आपको डिसीजन लेते भी देख रहे हैं, किससे कैसे रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। तो वो सब देख रहे हैं ना, वो अपन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब वो बड़े होंगे ना, तो उनकी एग्जैक्टली पर्सनैलिटी वही होगी, व्हाट यू आर जस्ट थिंकिंग, टीचिंग, फॉलोइंग, डूइंग। सो दे आर वेरी माइन्यूटली दे आर ऑब्जर्विंग अ लाइफ। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बच्चों के प्रति, है ना। चलिए, तो एक बढ़िया, अच्छा, अच्छी चर्चा हो रही है, बढ़िया है कि भाई मान की बात है, तो उनको हम मान की शिक्षा तो ना दें, लेकिन हाँ, सम्मान की बात तो बताना चाहिए, मान का क्या स्वरूप है, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, दूसरे को नीचे नहीं दिखाना चाहिए, तो इसमें लिखा ही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अपन तो एक अच्छा अच्छा डेटा देते जाएं बच्चों को, और इन फ्यूचर क्या होगा कि ऑटोमेटिक वो डेटा प्रोसेस करके, जब वो अपनी एक रिसर्च बनाएंगे ना अपनी लाइफ के लिए, कि भाई ये चीजें मेरे लिए ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करना है, वो फिर बड़ा मजा आएगा उनको कि यार मेरे पापा ने यार क्या डेटा दिया मुझे, एंड नाउ आई एम प्रोसेसिंग दैट डेटा एंड रीअरेंजिंग द डेटा in different parts of my life, so that's a creating wonder in my life। वो तो बहुत आश्चर्यजनक काम कर रहा है। तो ऐसे करके एक अच्छा टॉपिक चला हमारा, और हम लोग पेरेंट हैं, इसलिए इस टॉपिक में डिस्कस रहता भी हमें इंटरेस्ट। और आपने अच्छा, प्रेरित जी, प्रीति जी ने अच्छा क्वेश्चन किया कि भाई बच्चों के लिए कैसे कैसे क्या क्या चीजें बताएं, तो मैंने बता दी। चाणक्य नीतियां पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे संस्कृत के नीति, एक नीति शतक भी है संस्कृत का, तो वो नीति शतक भी आप पढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। नीति वाक्यामृत तो हमारा है ही है, और जो मैंने ग्रंथ बताया वो पढ़ा है, तो बच्चों को एक सफिशिएंट डेटा हमारे पास है देने के लिए। तो चलिए, अभी हमारा समय हो गया, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।
सौरभ जी, आज हमारे क्लास में कोई नए व्यक्ति थे, रूपल करके, रूपल हाँ, रूपल प्रेरित मिशी। Mishi, Mishi referred her to her. She is in Okay. Dallas. I think Okay, you okay. know her. She has been to our temple couple of times. Okay. Good. And now Megha has started joining too. So Yes, Megha has started. right. After a long time. सौरभ जी, मेगा Yes. हमारे यहाँ ह्यूस्टन में ही है बहुत सालों से, और मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया, बट वो क्लास में, मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ वो इसी में पढ़ाती है, और धीरे धीरे मतलब धर्म में भी बहुत ही रुचि बढ़ रही है, तो अच्छा है। और वो मेगा हैदराबाद से पहले आती थी मेघा जी, मुझे ऐसा याद है, पहले आते थे ना हम मेघा जी। हाँ हाँ, सौरभ जी, मैं बहुत, हाँ आई थिंक बहुत साल पहले मैं और बहुत मेरे रेगुलर साथ आते थे वो लोग। हम लोग बहुत आते थे, पर अभी बीच में बहुत गैप हो गया। लेकिन अभी वापस कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस अटेंड कर सकूं। और जैसे आज का बहुत बढ़िया। डिस्कशन था, बहुत ही अच्छा था। तो नहीं, डेफिनेटली ट्राई करूंगी। हाँ, मुझे ध्यान आया आप पहले आते थे। मैं क्या, मेरी थोड़ी हाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, मैं भूल जाता हूँ जल्दी लोगों नहीं को, जो लगातार आते रहे वो याद रहते हैं। नहीं, काफी टाइम हो गया है सौरभ जी, तो हमें नहीं, मिस बढ़िया किया मेघा हुआ जी, आप आइए। क्लासेस। यस, श्योर। हाँ, हमारी क्लास चलती है रेगुलर, मतलब वो कहते हैं ना कि ग्राहक आए ना आए, हमारी दुकान तो खुल जाती है। हाँ मतलब हम तो कुंजन और प्रेरित तो बहुत बार बोलते हैं कि बातें भी करते हैं कि क्लास में क्या डिस्कस हुआ कभी कभी, और काफी उन्होंने ही हमको इंस्पायर किया है, और आई थिंक डेफिनेटली हम लोग ट्राइंग करेंगे आने की। सौरभ जी। नहीं, गुड, बढ़िया। देखिए क्या होता है कि आप सब तो खैर, हम सब लोग समझदार हो गए। हम लोग जो जिनागम से डेटा ले रहे हैं, तो ये केवल हमें अ, धर्म के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन आपको सबको फील होता होगा कि हमारी लाइफ के बहुत, आजकल कंप्यूटर आए हैं तो हमें डेटा पता चला, भाई डेटा साइंस नाम की कोई चीज होती है, तो कोई नई नहीं है ये। डेटा साइंस तो अनादि काल से चल ही रहा है ना भाई। जनागम में जो जिनदेव प्रवचन बोलते हैं जिनवाणी, वो डेटा साइंटिस्ट, साइंस ही तो है, वो डेटा पूरा ले रहे हैं हम लोग। तो हम्म। क्या होता है, क्लास में आप लोग जब पढ़ने आते हैं ना, क्लास में हम लोग डिस्कस करने आते हैं, समझ लो। तो क्या होता है कि पूरे हफ्ते जो पढ़ता हूँ मैं, आप लोगों को जो पढ़ के आया हूँ, सब तैयार के आया हूँ, सो एटलीस्ट 1 hour स्पीच रिक्वायर्स 10 hours टू। ऑटोमेटिक मेरी बातों में आपको दिखेगी कि यार सौरभ जी रिसर्च कर रहे हैं, तो वो चीजें भी वो बता रहे हैं कि भाई कैसे स्टेटमेंट को वैलिडेट करते हैं, कैसे कंक्लूजन निकालते हैं, कैसे फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ क्लास में आना हर महीने में बहुत बेनिफिशियल होता है, सबको ही होता है। तो आप लोग एक दूसरे को सबको प्रेरित कीजिए। प्रेरित जी तो सबको प्रेरित, क्लास चलती है और चलेगी आगे। चलिए मेघा जी, फिर से स्वागत है आपका। अब हम आशा थैंक यू करते हैं सर आप जी। लगातार आएंगे। हाँ जरूर जरूर। दिनवानी चलिए स्तुति लेते हैं लेते हैं। जिनवाणी। हाँ सौरभ जी, थोड़ा मुझे याद आ रहा था, अभी अंबानी का वो सब प्रकरण चल रहा है मान कषाय में, तो मैं बोल रहा था नेक्स्ट वीक थोड़ा उसके भी अगेन नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, आज तो लेट हो गया। यस। ले लेंगे, बहुत बढ़िया। कुंजन जी, आपकी जो कॉलोनी है, जहाँ आपका यहाँ प्लॉट है, उसमें बहुत बड़ा पंचकर्णक हो रहा है। मंदिर जो बनाया, बहुत अच्छा बनाया। हाँ करीब सौरभ जी, पंचकर्णक मंदिर, इनकी लागत करीब 25-30 करोड़ की सुन रहे हैं हम लोग। हाँ, तो मैंने भी अच्छा यही पैसा सुना लगा है, रहे हो। मैंने उससे ज्यादा सुना है, मैंने उससे ज्यादा सुना है, लेकिन सौरभ जी हाँ बहुत तो अच्छे से कर रहे 50 करोड़ होगा फिर उसकी वैल्यू। हैं। चलिए बढ़िया, धर्म की प्रभावना हो रही है अच्छी सब जगह, ये बहुत अच्छा साइन है। लेते हैं जिनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू सौरभ जी। नरेंद्र।